اور جو یہ کہے کہ شیطان کا علم نبی پاک علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے، بولو ایسے کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ اور جو یہ کہے کہ نبی سارے نبیوں ولی ان کی شان اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اگر ایک حوالہ آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر بات جائے گی، سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، ایک حوالہ اگر غلط ثابت ہو 2 کروڑ روپیہ فاروق مصباحی دینے کا حقدار ہے۔ پتہ لگا کتنا بڑا سیٹ ہوں؟ ایک دکی نہیں دینی پڑے گی، ماں کو کوئی پیدا نہیں ہوا ہے ایک حوالہ جو غلط ثابت کر رہا ہے۔ اگر ایک حوالہ آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر بات جائے گی، سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، ایک حوالہ اگر غلط ثابت ہو 2 کروڑ روپیہ۔ پتہ لگا کتنا بڑا سیٹ ہوں؟ ایک دکی نہیں دینی پڑے گی، ماں کو کوئی پیدا نہیں ہوا ہے ایک حوالہ جو غلط ثابت کر رہا ہے۔ حضرت آپ کا بیان ایک سن رہا تھا میں، جی اس میں آپ نے 2-3 باتیں کہی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی حوالہ غلط ہوا تو 2 کروڑ روپے کا دینے کا کہا ہے۔ تو آپ نے پہلی بات اس میں یہ کہی کہ جو یہ کہہ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانوروں کی طرح ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اچھا، آپ کو نہیں معلوم اس کے بارے میں؟ نہیں، میرے خیال سے تو نہیں، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے تو کہا تھا حوالہ کا، حوالہ تو وہاں دیا نہیں تھا آپ نے، چلو ابھی دے دیں۔ حفظ الایمان میں ہے، جی حفظ الایمان میں ہے۔ حفظ الایمان میرے ہاتھ میں، حضرت صفحہ بتائیں آپ۔ صفحہ تو میں لائبریری میں بیٹھ کر پھر بتاؤں گا۔ اچھا، حفظ الایمان میں ایک منٹ دیکھتا ہوں۔ حفظ الایمان حضرت تھانوی کی؟ ہاں تھا میں۔ حفظ الایمان میں کوئی آپ اس کا مجھے ڈال دیں گے، اس صفحے کا کوئی فوٹو وغیرہ؟ آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں پنچ ہی رہتا ہوں۔ آ جائیں میرے پاس، ادھر ہی بیٹھیں گے، دیکھیں۔ نہیں تو ایسے ہی ڈال دینا آپ۔ ایسے کہاں میں وہ ڈالوں گا، آپ ادھر آ جائیں۔ نہیں محترم، حفظ الایمان میرے پاس ہے، آپ نے سری جھوٹ بولا ہے۔ یہ جو دعوت دے رہا ہوں نا، میں دعوت دے رہا ہوں، آپ آئے میرے پاس اور آ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو الفاظ آپ نے رات اس میں بیان پروگرام میں بولے ہیں وہ کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ بتا دیں، ابھی بتا دیں۔ آپ عبارت پڑھیں، آپ عبارت پڑھیں، کیا ہے؟ کیا آپ کے ہاتھ میں نا، آپ عبارت پڑھیں، کیا ہے کتاب میں؟ وہ تو آپ بتائیں نا، صفحہ نمبر بتائیں پھر۔ حفظ الایمان آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں میرے نا، ہاتھ میں ہے، یہ 32 صفحے کی ہے حضرت۔ ہاں، آپ بتائیں کہاں سے پڑھوں، کس جگہ لکھا ہے؟ جی آپ کو پتا ہوگا نا، اسے پڑھے آپ، کیونکہ کئی رسول کی الگ الگ کتابیں ہیں نا۔ میں نے پوری پڑھی ہے، سنیے، میں نے پوری پڑھی ہے، یہ الفاظ پوری کتاب میں کہیں نہیں ہے۔ کیا الفاظ ہے، اسے الفاظ پڑھیں آپ۔ تو ساری کتاب سناؤں آپ کو؟ جی ساری تھوڑی سنا سکتا ہوں میں آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں وہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ پڑھے نا کتاب، یا آپ میرے پاس آئے، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ایسے ہی آپ دکھا دینا۔ آپ نے تو وہاں تو کوئی حوالہ بھی نہیں بولا اس وقت، آپ نے کہا کہ اگر حوالہ غلط ہو تو 2 کروڑ، آپ نے حوالہ بولا وہاں؟ نہیں، حوالہ اگر نہیں بولا، آپ کو اتنی مرچی کیوں لگی اس سے؟ مرچی ہمیں اس لیے، ہمیں جھوٹ پہ مرچی لگی؟ مسند رسول پہ بیٹھ کے آپ جھوٹ بولیں گے، سری جھوٹ۔ نہیں، سری جھوٹ یہ تو میرے ذمہ ہے نا، آپ میرے پاس آئے، آنے سے اتنا کتراتے کیوں ہیں؟ آپ ابھی بتانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ اتنا کتراتے کیوں؟ آپ آئے، میں بتاؤں گا۔ آپ ابھی بتانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ نہیں، آپ بتانے سے کیا؟ میری بات سنیے مفتی صاحب، میری بات سنیے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر حوالہ غلط ہو 2 کروڑ روپیہ تو لے گا۔ میں آپ کو کہتا ہوں جو الفاظ آپ نے بولے ہیں اگر کسی کتاب میں دکھا دیتے ہیں تو 2 کروڑ روپیہ میں انعام دوں گا۔
आप आइए ना 2 करोड़। मैं क्यों आऊंगा? आइए तो। आप जवाब दीजिए, आपने बोला है किस किताब में है ये? आप इतना डरते क्यों हैं? शर्म नहीं आती मसनद रसूल पे बैठ के झूठ बोलते हुए? आप आइए। वो नहीं, आपने खुदा के लिए शर्म नहीं आती आपको मसनद रसूल पे बैठ के झूठ बोलते हुए? ये किस किताब में है? किसी किताब में है ये? किसी किताब में नहीं है। और कोई मुसलमान ऐसी इबारत नहीं लिख सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं 2 करोड़ रुपया मैं दूंगा अगर आप ये अपने अल्फाज साबित कर देते हैं किसी किताब से। झूठ बोल के आवाम को गुमराह करने के लिए एक तरीका बना रखा है यार आप लोगों ने। अच्छा बोले, आप बता सकते हैं किसी किताब में है ये इबारत? नहीं इबारत है, मैं बताऊंगा ना। आप आते कि नहीं आए ना, आप इबारत दिखाऊं आपको मैं। आपने जिस तरह फेसबुक पे सरेआम ये बात कही ना, हाँ तो सरेआम कहूंगा ना। इसी तरह सरेआम हवाला दे दीजिए आप। हाँ सर, हवाला दूंगा ना, आप आइए। हाँ दीजिए। मैं क्यों आऊंगा आपके पास? आपने बात कही है सोशल मीडिया पे और अब आप हवाला बताएंगे कमरे में बैठ के? नहीं तो कमरे में क्यों? सोशल मीडिया को यहीं बुला लेंगे, आइए आप। हम क्यों आएंगे? आप बताओ, रिकॉर्ड आप नहीं, मुझे आप बताइए आपको मिर्ची क्यों लगी इसकी इतनी? झूठ की वजह से? नहीं, इसमें मैंने किसी का नाम लिया था। मैं कह रहा हूँ किसी का नाम, किसी का भी आप ना लें। नहीं, आपका नाम लिया था मैंने कहा नाम लिया? नहीं, जब नाम नहीं लिया तो आपका फौरन मेरा कहा? मेरी बात सुनिए मुफ्ती साहब। हाँ बोले। नाम का मसला नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात पर है कि आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है, ओहदा दिया है, और आप मसनद रसूल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो झूठ जिसको साबित होगा ना आप इनाम ले लें। जब झूठ साबित हो गया ना, हो गया, हवाला कोई नहीं है। जब झूठ साबित होगा तो आप इनाम ले जाएं। जब इबारत मेरा सुनिए मुफ्ती साहब, मेरा चैलेंज है आपको, जो अल्फाज आपने बोले हैं वो किसी किताब से आप मुझे दिखा दें। और आप जो है ना, आप किताब आपके हाथ में है, आप जरा पढ़े, मैं अभी बताता हूँ उसमें। अच्छा आप पढ़े खुद। देखिए मैं आप इबारत पढ़े। आप सुनिए, मैं इबारत पढ़ता हूँ। जो मुझे पता है कि जिस इबारत पे आप हजरात इश्काल करते हैं, हाँ पढ़े, और जिसको तरोड़ मोड़ के आपने पेश किया है। नहीं, तरोड़ मोड़ के पेश ही नहीं किया। तो सही तरोड़ मोड़ के आपने तो सीधा कहा ना कि हुजूर का इल्म जानवरों की तरह है। ये बात तो नकल करते हुए भी शर्म आती है। हाँ बिल्कुल। आप बताओ कि जिसने ये लिखा हो कितना बड़ा बेशर्म आदमी होगा। मैं बिल्कुल बेशर्म है, और कहने वाला भी बेशर्म है जो मेंबर पे बैठ के इस तरह की बात कहेगा। हम तो सिर्फ बताने वाले हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि जिस किसी ने बताने वाले नहीं, आप पढ़े, आप कहने वाले हैं। दुनिया में किसी मुसलमान ने ये बात आज तक नहीं की आपके अलावा। मैं पढ़ता हूँ, सुनो। अब फिर इसमें वक्त लग जाएगा। नहीं, आप वो मकाम पढ़े ना जहाँ इश्काल है, बाकी तो छोड़े किताब को। नहीं, आपको पता है ये किताब यानी क्या है? इसमें किताब का पढ़ी हुई है, आगे पीछे का भी पता होना चाहिए ना। पूरी किताब पढ़ी हुई है, वरना मेरी बात सुनिए, इस तरह अगर आदि मैं भी पढ़ूंगा ना तो सुनिए, आपके मौलाना, मेरी बात सुनिए, मौलाना उमर अशरवी साहब ने मिक़यास हनफियत सफ़ा नंबर 291 में लिखा है कि हुजूर ज़ौजैन के जुफ्त यानी हमबिस्तरी होने के वक्त भी हाजिर व नाजिर होते हैं। और दूसरा वाला मलफूज़ात आला हज़रत हिस्सा नंबर सोम सफ़ा नंबर 362, अम्बिया की क़ुबूर मुतहरात में अज़वाज मुतहरात पेश की जाती हैं और वो उनसे शब्बाशी भी फरमाते हैं। इसमें तो नहीं ना तौहीन कोई बात है? नहीं, इसमें तौहीन क्या है? हाँ, इसमें थोड़ी तौहीन है। कब्रों में शब्बाशी करते हैं, ये अल्फाज कहने के हैं। आप अपने माँ बाप के लिए ऐसे लफ्ज बोलेंगे? एक बात, सबसे पहली और सुन लीजिए आप। आपके वालिद का कृष्ण कन्हैया काफिर था, वो एक वक्त में कई 100 जगह मौजूद था। मलफूजात आला हजरत हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 177। आप इबारत पढ़ने से इतना हिचकिचाहट क्यों महसूस कर रहे हैं? आप कहीं और चले गए। पहले जिस इबारत पे बात हो रही है उससे तो कर लेना। यही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि काट छांट के किसी की सिर्फ एक लाइन की इबारत से उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लग सकता। अगर इस तरह लगेगा तो इन लोगों पर भी लगाइए जिन्होंने कहा कि हुजूर हम स्त्री के वक्त भी ज़ौजैन के पास रहते हैं। हाजिर नाजिर का माना समझते हैं आप? देखिए क्या लिखा हो, यानी हाजिर के माना मौजूद और नाजिर के माना देखने वाला। मियां बीवी हम बिस्तरी कर रहे हैं तो हुजूर देख रहे हैं उनको। बात सुनिए, एक मिनट। जी बताइए। क्या ये जो इबारतें आपने जो इबारतें पेश की हैं, हाँ, ये इबारतें कुफरिया हैं? आप बताएं ना। नहीं, आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दावा तो आपका है ना। हमने, मेरी बात सुनिए, हमने कुफरिया नहीं कहा। पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या ये इबारतें कुफरिया हैं? गुस्ताखाना इबारतें हैं। नहीं, कुफरिया है या नहीं? कुफरिया हमने थोड़ी कहा कुफरिया है।
हम तो कह रहे हैं गुस्ताख, हम इसीलिए तो इन इबारतों के बावजूद भी हम कुफ्र का फतवा नहीं लगाते हैं यहाँ पर। नहीं, देखिए आप बात सुनिए, आप इधर उधर भागे मारते हैं। आप ही बता दीजिए गुस्ताखा, ये इबारत गुस्ताखाना है कि नहीं है? क्या ये इबारतें आप नबी पाक इस्लाम की गुस्ताखी करने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? अब आप फैसला करेंगे आपके अपने मिक़यास हनफियत के मुसन्निफ के बारे में। हमारा फैसला तो ओपन है, आप बताइए ना, आपका फैसला क्या हुजूर की गुस्ताखी करने वाला मुसलमान है? अगर वो तावील करता है तो मुसलमान है। नहीं, तावील की, अगर तावील आप तावील कर रहे हैं ना। अभी मैंने आपकी इबारत पेश की, हुजूर ज़ौजैन के हमबिस्तर होने के वक्त भी हाजिर नाजिर होते हैं, आपकी किताब में लिखा है। आप हुक्म लगाने में इतना हिचकिचाहट क्यों महसूस कर रहे हैं? आप ये बताइए। हम हिचकिचा इसलिए रहे हैं कि हम किसी मुसलमान को काफिर कहने में हिचकिचाते हैं। देखिए, हम भी मुसलमान किसी मुसलमान को काफिर कहना कोई मजाक है? बिल्कुल। और फिर भी तकफीर शख्सी, इसीलिए मैंने गुस्ताख का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने काफिर नहीं कहा। गुस्ताख कई तरह के होते हैं। आपके उलमा ने, आप अपनी किताबें पढ़े, आपके उलमा ने जिस बेदर्दी के साथ मुशरिक कहा है ना, मुझे बताइए कोई मुशरिक मुसलमान हो सकता है? मेरी बात सुनिए, मुशरिक को छोड़िए, किसने कहा है? कहाँ मुशरिक कहा है? मुझे बताइए किसने कहा मुशरिक किसने कहा? नहीं, एक सीधी सी बात बताएं, कोई भी दुनिया का मुशरिक मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मुशरिक तो यानी मुशरिक और काफिर के दरमियान कौन सी निस्बत है? आम खास मुतलक की, आम खास मिनवज की है, या तसावी की है, तबायुन की निस्बत कौन सी है? मुशरिक ये निस्बतें सारी हमने पढ़ी हुई हैं, आप उधर मत जाइए। आप ये बताइए किस जगह हमने लिखा है? हमारे उलमा ने कहाँ लिखा कि मुशरिक है? मुशरिक कहाँ का? आपको बता रहा हूँ, किसी जगह कहा है? आप किताबों को पढ़िए, इस कदर लिखा हुआ है। एक का हवाला दे दीजिए, किसी एक का हवाला दे दीजिए। जैसे मैं हवाले के साथ बात कर रहा हूँ ना, आप हवाले के साथ बात कीजिए। नहीं, देखिए, जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, मुशरिक लिखा हुआ है, किसी एक जगह का बता दीजिए। आप इबारत पढ़े जरा, वो जो इबारत पे हमारी हो रही थी ना, वो इबारत नहीं। आपने जो मैंने वो इसलिए इबारत पढ़ी है मिक़यास हनफियत की कि इस तरह की इबारतों की वजह से जब तक पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, पूरा मसला आगे पीछे से नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक महज उस इबारत की वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता। हेलो, जी, हाँ बोले। तो सुन लिया आपने? नहीं सुना है, बीच में कट गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मिक़यास हनफियत सफ़ा 291 पर लिखा है कि हुजूर हम बिस्तर होने के वक्त भी हाजिर नाजिर होते हैं। हाजिर के माना मौजूद, नाजिर के माना देखने वाले। तो हुजूर वहाँ खड़े होकर तमाशा देखते हैं ना, उज़बिल्लाह। नहीं, इस इबारत पे क्या हुक्म है आपके नजदीक? आप बताएं। आप तो बड़ी जल्दी फतवे लगाते हैं ना, आप बताएं। आप बताइए ना, आप इस पे हुक्म क्या है? मैंने तो बता दिया, आप बताएं इस इबारत का क्या हुक्म है? नहीं, वो हुक्म तो आप बताएंगे ना, दावेदार आप हैं। किस चीज के? तो जिस चीज का दावा करेंगे ना, उसका हुक्म बताएंगे। आप ही तो जल्दी फतवे लगाते हैं, आप बता दीजिए, फतवा दे दीजिए। नहीं, हम जल्दी फतवे नहीं लगाते, हमारे इतना मोहताज फतवा लगाने में है ही कोई नहीं। हाँ, जो आदमी जिस आदमी का ये नजरिया हो कि हुजूर हम मियां बीवी की। सफा नंबर क्या आता है क्या से हनफियत का? जी, सफा नंबर 291। अच्छा, हाँ, अगर आप कहें तो मैं उसका वो भी भेज दूंगा आपको। उसमें चलो मैं देख लूंगा। और आपकी तसल्ली के लिए PDF भी भेज दूंगा, पूरी पढ़ के आप आगे पीछे से देख लीजिएगा। हाँ, हम आधी बात नहीं करते, हम हवाले के साथ बात करते हैं। आपने तो वहाँ सिर्फ दावा किया कि हवाला गलत हुआ तो करोड़, और बोला झूठ का कोई हवाला थोड़ी होता है मोहतरम। हवाला आपने हवाला एक भी बयान नहीं किया और कहा जी 2 करोड़। इतनी ये यानी बहस करने के बावजूद भी आप इबारत नहीं पेश कर रहे हो। हालांकि आप कह रहे हैं मेरे हाथ में किताब है। बिल्कुल किताब मेरे हाथ में है। इबारत पढ़ नहीं रहे आप, पढ़े ना इबारत। मैं इबारत पढ़ता हूँ, लेकिन पहले आप इतनी बात जो आपने अल्फाज बोले हैं ये किसी किताब में नहीं है। अगर किसी किताब में है, इबारत पढ़े ना आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अल्फाज आपने बोले हैं वो दुनिया की किसी किताब में नहीं, और किसी मुसलमान ने ऐसे अल्फाज नहीं कहे। आप इबारत तो पढ़े ना। और आप पहले इंसान है जिन्होंने ये अल्फाज नबी इस्लाम के लिए बोले हैं। अच्छा, आप इबारत पढ़े। हमने अस्तगफिरुल्लाह हम कह सकते हैं? ये कहे हैं आपने, कह सकते नहीं कहे हैं आपने। मुझे बताइए, जिसने ये कहा क्या वो मुसलमान है?
آپ بتائیں نا, آپ نے کہے. نہیں, ہمارا تو بالکل واضح, ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے جس نے نبی پاک علیہ السلام کے علم کی ایسی توہین کیوں, ہمارا تو موقع کی واضح ہے. آپ کھل کے میری بات سنیے. جو آدمی نبی پاک علیہ السلام کے علم کو جانوروں پاگلوں کی طرح کہے یا ویسے بتائے, کیا وہ مسلمان ہے؟ دیکھیے یہ تو میں کہہ رہا ہوں, جو یہ کہے کہ حضور کا علم نعوذ باللہ جانوروں کی طرح ہے وہ کافر ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن لکھا کس نے ہے, سوال یہ ہے, یہ لکھا کس نے ہے؟ اولیاء کرام کی طرف اس طرح کی جھوٹی باتیں منسوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے بھائی. آپ عبارت کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ عبارت میں پڑھ رہا ہوں, میں بتاؤں نا کہ یہ جو حفظ الایمان ہے, یہ حضرت کو کسی شخص نے سوال پوچھا ہے. آپ عبارت پڑھیں, وہ مجھے پتا ہے سوال کا جواب ہے, آپ عبارت پڑھیں. تو جب آپ نے پڑھی ہے پوری کتاب؟ پوری کتاب پڑھی ہے میں. تو کیا ہے اس میں بتائیے ذرا, کس یہ جو آپ نے الفاظ کہے یہ کس بات میں کہے لکھے ہیں حضرت نے؟ میں نے کہا کہ میں اس میں لائبریری میں بیٹھ کر کے کتاب سامنے ہوگی تو پھر آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے فون کیا ہے, یا تو کوئی ٹائم دیتے کہ کس وقت ہم بات کرنی ہے اس تعلق سے, کر لیجیے. اور آپ نے اچانک فون کیا, اب آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے, میں نے کہا پڑھیں آپ عبارت, تو آپ عبارت نہیں پڑھ رہے ہیں. میں تو آپ کو